A very good morning to all of you. Today we will discuss our chapter number 3, which is the national income and the related aggregates. In this chapter we will discuss about the basics for the national income and so many different terms which are mainly related to the national income. Like the concept of the national income will be there, then the domestic and the national concept of the income will be there, gross and net concept of the income, domestic product at market price and factor cost. Mainly the three terms are there: domestic and national concept of income, gross and net concept of domestic product, and domestic product at market price and factor cost. After that, the sum of the aggregates related to the national income will be discussed there. Then the nominal and the real GDP, and the last one topic will be there, which is the GDP and the welfare. So today we will start from chapter number 3, the first one topic, the concept of national income. What do you mean by the national income? National income simply we can say कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कहेंगे कि नेशनल इनकम क्या है, जो पूरी कंट्री की इनकम है. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कंट्री की इनकम को हम इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में हम कैसे डिफाइन करेंगे. वी कैन नॉट से सिंपली कि दिस इज द इनकम ऑफ द होल इकोनॉमी और द इकोनॉमी एज ए होल. नो, द मेन क्वेश्चन अराइज हाउ वी कैन इंटरप्रिटेट इट. सो द नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम्स. यहाँ पर मेनली क्या चीज आ जाती है कि नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है. टोटल है ओवरऑल किस चीज का, फैक्टर इनकम का. हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि एक इकोनॉमी में फेसेस चलते हैं. प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन इनकम में कन्वर्ट होती है और इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट होती है, राइट. सो हेयर इन ऑर्डर टू मेजर द नेशनल इनकम, simply what which kind of the work is done, the factor income is added. फैक्टर इनकम मीन्स कि जो भी लोग वर्क कर रहे हैं उसके बदले में उनको, मतलब इट मीन्स कि उन्हें फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में जो इनकम मिल रही है, दैट इज द फैक्टर इनकम. सो हेयर सिंपली वी कैन से दैट द फैक्टर इनकम विच इज अर्नड बाय द normal residents. We just have to study these concepts in a very deep manner. Normal residents of a country during the period of an accounting year. The simple thing, firstly we can say that national income kya hai, it is the sum total of the factor income earned by the normal residents of a country during the period of an accounting year, right. On the opposite side, if the question arises, one, which are the main two terms in this concept, कि इसमें mainly क्या क्या included है. The main thing is there that the national income, एक तो हम इसमें फर्स्ट टर्म जो आ जाएगी that will be the factor income. कि national income जो है उसमें मेन क्या आ रहा है, only factor income, not any the non factor income, non factor services, nothing. Only the factor incomes will be included, as well as जो national income है उसमें किसकी income include है, only the normal residents of a country, not the non-residents of a country. So now in order to understand the national income in a proper sense, we also have to understand the both of these concepts in a deep manner, that what is the meaning of the factor income and what is the meaning of the normal resident. The first one is there that the factor income. Factor income mainly क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट मिलती है, जो पैसा मिलता है, दैट इज नोन एज द फैक्टर इनकम. सो द मेन थिंग इज देयर कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स क्या करती हैं, फैक्टर सर्विसेज लेने के बदले में जो पेमेंट देती हैं, द फैक्टर इनकम are the payment made by the producing units to whom, to the household, to the owners of the factors of production.
तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेनली हम बताते हैं कि देयर आर मेनली द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, सैलरीज। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो द फर्स्ट वन, सो द वी कैन से द फर्स्ट वन, इफ वी विल कैटेगराइज द फैक्टर इनकम मेनली, तो ये मेनली हमारे इस पार्ट्स में आ जाएगी। द फर्स्ट वन इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कि जो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, अपनी सर्विसेज के बदले में जो उसे सैलरी या वेजेस मिल रही हैं, दैट विल बी द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड वन इज द रेंट, रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड, कि प्रोड्यूसिंग यूनिट जो उनकी लैंड यूज कर रही है उसके लिए जो रेंट मिला, दैट विल बी ऑल्सो द फैक्टर इनकम। थर्ड वन इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल, कि उनकी कैपिटल यूज करने के बदले में जो पैसा प्रोड्यूसिंग यूनिट ने हाउस होल्ड सेक्टर को दिया, दैट इज द इंटरेस्ट। एंड द लास्ट वन इज देयर, दैट इज द प्रॉफिट, which is mainly received by the household sector for the use of their entrepreneur skills, कि प्रोड्यूसिंग यूनिट ने जो एंटरप्रेन्योर स्किल यूज की उसके बदले में जो प्रॉफिट मिला, सो वी जस्ट इंक्लूड दैट थिंग इन द फैक्टर इनकम। सो एट द टाइम ऑफ द नेशनल इनकम यू विल इंक्लूड only the factor income, right? Like the compensation of employees, then the rent is there, interest is there, profit is there. One of the question arise here, which is that the factor income are different from transfer income or not? Yes, factor income are different from transfer income. How? देखो जो factor income है, that are the bilateral payment, means that are the two sided payment, कि एक पर्सन ने आपको सर्विस दी उसके बदले में आपको पेमेंट आपको पे करनी पड़ रही है। बट अगर हम ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर इनकम की बात करें, देन द ट्रांसफर इनकम इज द दैट इनकम विच इज मेनली रिसीव्ड बाय द पर्सन एज ए हेल्प, डोनेशन, चैरिटी। इट मीन्स दिस इज द यूनिलेटरल पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट, कि एक पर्सन को ही सिर्फ कुछ मिला, उस पर्सन ने इन रिटर्न उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया, राइट? As like factor income are those income which are mainly received by the factors of production by rendering their factor services. But अगर हम बात करें तो फैक्टर इनकम क्या है? वो अर्नड इनकम है, उसको अर्न किया गया है। बट ट्रांसफर इनकम क्या है? अनअर्नड इनकम है, उसको अर्न नहीं किया गया, वो एज ए हेल्पिंग हैंड आपको मिली है, राइट? सो द ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्न एज रिवार्ड। सो ट्रांसफर इनकम जो है वो सिंपली दैट इज नॉट मेनली अर्नड एज ए रिवार्ड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, कि उसको किसी सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में नहीं कमाया गया। सो these are the unilateral payment, only the one sided, that's why it is not included in the estimation of national income, कि ओनली क्या किया जाता है? फैक्टर इनकम को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, not the transfer income, because of that is not earned. Okay, after that, so simply we can say that the national income is the sum total of the factor income. transfer income इसमें include नहीं की जाएगी क्योंकि किसी भी सर्विसेज को देने के बदले में उसे कमाया नहीं गया। now the second question arise, who are the normal residents of a country? हमने बात की अपनी नेशनल इनकम में कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, राइट? सो देयर आर द सम बेसिक कंडीशंस ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट्स आल्सो, कि एक नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होगा जो मेनली ये दो कंडीशंस फुलफिल करेगा।
कौन-कौन सी 2 कंडीशंस देखिए द सिंपली हू इज़ रिसाइडिंग इन द कंट्री कंसर्न्ड उसी कंट्री में रह रहा है, जहाँ पर मतलब जिसकी इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ वो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा है। वो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in the same country. Now the question arises, what do you mean by the ordinarily residing in the country? तो एक पर्सन को हम क्या कहेंगे, एक कंट्री में जो पर्सन 1 साल से ज़्यादा रह रहा है, द मिनिमम 1 ईयर इज़ देयर, मोर देन 1 ईयर से अगर एक पर्सन उसी कंट्री में रह रहा है, दैट पर्सन विल बी नोन एज़ द ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री। और ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन उसी कंट्री का सिटीज़न हो। it may be or may not be the citizen of the country, but वो वहां पर 1 साल से ज्यादा रह रहा है, that person will be treated as the ordinarily residing in that country. Now the question arises, what do you mean by the economic interest? कि एक पर्सन को क्या कहा जाएगा कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है। द मेन थिंग इज दैट कि एक पर्सन जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज मीन्स कि वो जब अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट सभी की सभी जो है वो उसी ही कंट्री में कंडक्ट कर रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज द economic interest lies in the same country. So these conditions must be fulfilled at the time when we just measure that the person is the normal residents or the non-residents of the country. Some of the examples are there that how the normal residents in India or non-residents of India. अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट्स में कौन आ जाएगा, जो इंडियन वर्कर कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक जो है फॉरेन एम्बेसीज में वर्क कर रही है, कि बाहर के एरियाज में जो हमारे एम्बेसडर्स हैं वो काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द नॉर्मल रेजिडेंट। अब फॉरेन के जो लोग इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं वो हमारे नॉन रेजिडेंट है। इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO, कि इंडिया के जो लोग हैं WHO जो हमारे इंडिया में लोकेटेड है वहां पर काम कर रहे हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है। अब इंडिया में बाहर के देशों के लिए जो WHO कंडक्ट किया गया है वो उसमें जो फॉरेनर वर्क कर रहे हैं दे आर द नॉन रेजिडेंट्स। लोकल पीपल वर्किंग इन IMF, जो हमारा इंडिया के अंदर IMF का ऑफिस है वहां पर जो हमारे लोकल पब्लिक काम कर रही है वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। बट IMF जो हमारे इंडिया में ही है उसका सेंटर, उसका ऑफिस, वहां पर अगर जर्मन लोग वर्क कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर तो वो जो है हमारे नॉन रेजिडेंट है। एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जो हमारे एम्बेसडर्स हैं दैट इज नोन एज द नॉर्मल रेजिडेंट। और इंडिया में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एम्बेसडर्स हैं दैट इज नोन एज द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, कि फॉरेन सिटीजन जो है वो इंडिया में रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा, स्पेशली उन लोगों को छोड़कर जो कि स्टडी कर रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। और ऑन द ऑपोजिट साइड जो फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में ही काम कर रहे हैं 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए, दे आर नोन एज द नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनकम में मेनली क्या होता है, जो नॉर्मल रेजिडेंट इनकम अर्न करते हैं सिर्फ वही इंक्लूड की जाती है, इसमें नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता।